Now, uh, we are we had discussed the three acts previously. I hope you are able to see the screen now. Yes, sir. Right. So we had discussed the Regulating Act, the Pitt's India Act, and we had discussed the Charter Act of 1793. Right. The Charter Act of 1793. उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1813 का हमने देखा। तो हमने पहले देखा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट था, उसका पर्पस कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने का था। और फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉमर्शियल and the political affairs of the company were separated in Pitt's India Act. Followed by this, the first act under the name of charter came in 1773. 1773, 1784, sorry, 1793. After 1793, everything was going on well, and 20 years down the line, they created a new act, Charter Act 1813. Now, this Charter Act 1813 finally ended the monopoly of East India Company, maintained the monopoly of East India Company with respect to tea and Chinese trade. Christian missionaries were allowed to establish their missions in India, and Indians were being given education. 1 lakh every year was allocated. Now, this is the beginning of the political history of India. It was the final step towards centralization in British India. What were the main features? Now, for the very first time, Governor General of Bengal became Governor General of India. GK ka point, that is the note number 1 that you are going to write. First point, Governor General Bengal becomes Governor General of India. Under which act? It became under Charter Act 1813. ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? 18, sorry, 33, my bad, 1833 for the first time. And the name is also important, and the name is Lord William Bentinck. Lord William Bentinck. What are the powers that were given to him? The civil and military powers were given to him. So now Governor General of Bengal became the Governor General of India now, which means subconsciously Britishers were trying to imply that the entire territory of India per se belongs to them. All the commercial activities of East India Company were closed down. Now East India Company is like literally disbanded. Right? What happened? Whatever were the company's territories in India, कंपनी की फैक्ट्री, कंपनी ने जो भी एरिया अपना स्टैब्लिश किया था, अब वो रानी के और उनके वंशजों के लिए स्टैब्लिश कर दिया गया. प्लीज अंडरस्टैंड द हेरिडिटरी राइट्स ऑफ द क्वीन, the hereditary rights of the queen over India's possession, yeah, Indian territories in possession of British company was finally, you can say, established. So this is very, because this is entirely changing the narrative now, right? अब यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि ब्रिटिशर्स अभी तक तो शासन करने के लिए आए थे, प्रॉफिट कमाने आए थे, फिर शासन करना था उनको. अब वो जाने की मंशा नहीं रखते हैं. तो चार्टर एक्ट 1833 के अंदर कॉमर्शियल ऑपरेशंस एंडेड. कॉमर्शियल चार्टर एक्ट के अंदर कॉमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ कंपनी को एंड कर दिया गया. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटरी ट्रांसफर एंड ओनरशिप ऑफ क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज were established. The idea was rule in perpetuity. हमेशा के लिए, सदा के लिए वो रूल करेंगे. द रूल इन परपेचुटी. दैट इज व्हाट दे एस्टैब्लिश्ड अंडर चार्टर एक्ट 1833. Right? And what were the powers that he had? Lord William Bentinck had. So he had all the powers with respect to civil, and with respect to military, he had all the powers. This is something that is coming in notes. The Governor General of East India Company was given exclusive legislative powers for the entire British India.
Now, the law making power for India, for British India, vested completely, vested completely over Governor General of India. Now, please understand, the Governor General of India could not frame the constitution for India that time. Legislative power has to be differentiated from the Charter Acts and so far and so far. ये चार्टर एक्ट 1833 तो अभी भी ब्रिटेन से बन के आएगी. इस चार्टर एक्ट के अंदर पावर दी गई है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कि तुम ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ मेकिंग पावर है वो तुम्हारे पास आ रही है. अब आप समझ सकते हैं, कानून बनाने वाला, सिविल पावर्स, सिविल जज, जमीन जायदाद, जोरू, शादी, ये सब के पावर्स और मिलिट्री पावर्स भी सब किसके पास है? एक ही व्यक्ति के पास है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास. आज के टाइम पे आपको ऐसा देखने को मिलता है क्या? डू यू सी इट इन टुडेज टाइम? हु इज द हेड ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स? बोलिए. सीडीएस. सर एयरफोर्स के सर एयरफोर्स के वी आर चौधरी हैं, नेवी के आर हरि कुमार हैं. बाबू प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर. समझे? प्रेसिडेंट इज द, तुम तो आर्मी. अच्छा हाँ सर, सुप्रीम कमांडर. हाँ, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ, वही पावर लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास भी है. लेकिन क्या प्राइम प्रेसिडेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है? नहीं. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में तो नहीं है. ऑर्डिनेंस बनाता है वो, जो टेम्पररी लॉ है. लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास एब्सोल्यूट पावर थी लॉ मेकिंग की. चार्टर एक्ट 1833 ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये. द आइडिया ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय चार्टर एक्ट 1833 जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड स्टेटेड that the Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. Which means for the first time Indians, and stated that Indians should not be debarred, मतलब Indians can also take part in the civil service examination. Starting में ये पेपर लंदन में होता था. However, this provision was removed after the opposition from the court of directors. ज़रा सोचिए, कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स को चलाने वाले लोग नहीं ये चाहते थे. इंडियन सिविल सर्विस लोग काम क्या करते थे? सिविल सर्विसेज वाले लोग किसके अंदर काम करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करेंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंटेंट होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजर होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ को मैनेज करेंगे, समथिंग लाइक दैट, राइट? द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हु आर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी didn't want the participation of Indian officers. Why? Because they had some sort of fear in their mind that first, the entire trade accounts and everything would be set open for Indian people, and second, इनके जो दबे पाँव में जो करप्शन करते हैं ये लोग, जो अपनी ब्रिटिश सरकार से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पैसे चुरा रहे हैं, है ना, वो पता चल जाएगा. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियंस का पार्टिसिपेशन सिविल सर्विसेज पेपर में होने से 1833 में रोक दिया. लेकिन आइडिया, प्रपोजल जो था वो 1833 में आ चुका था. अंडर दिस एक्ट इंडियाज फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज ऑल्सो स्टैब्लिश्ड एंड लॉर्ड मैकॉले वॉज मेड द चेयरमैन. जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, लॉर्ड मैकॉले. अच्छा, 1830s के बाद क्या है कि ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट किया है? ब्रिटिशर्स ने ना अपना टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन, ये सब करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया है. इसी टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी निकाली जिसके तहत जो राजा है, अगर वो बिना वंशज के जाता है तो उसकी पूरी रियासत उनके पास आ जाएगी. अगर कोई ज़मीन है, वो किसी टाइटल के बिना है, वो ज़मीन को ये टेक ओवर कर लेंगे. टैक्सेशन बढ़ाते चले गए. पीजेंट्स को जो टैक्स पहले 1/6 हुआ करता था, वो 1/3 कर दिया, फिर बीच में 1/2 कर दिया. इसी दौर में 1833 से 1858 के बीच में 3 तरह के लैंड सिस्टम्स आप देखते हैं. महलवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम. ज़मींदारी सिस्टम
अपने यूपी अवध में चल रहा है, महलवारी सिस्टम अपना राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले इलाके में चल रहा है, और रियोतवारी सिस्टम अपना साउथ में चल रहा है, तेलंगाना कर्नाटका वाले रीजन में चल रहा है। इस सभी तरीके से जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो पावरफुल होते जा रहे हैं और एक्सप्लॉयटेटिव होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 ने पूरे डायनेमिक्स को चेंज कर दिया था। एक तरीके से गवर्नर जनरल के ऊपर लॉ मेकिंग पावर बना दी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब काम कर रहा है रानी के इंटरेस्ट के लिए, ना कि कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। और रानी का इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट से बड़ा था। कंपनी का इंटरेस्ट कॉमर्शियल था, रानी का इंटरेस्ट पॉलिटिकल था। क्योंकि ये एक ऐसा और भी टाइम आप देखें, 1833 को आप आइसोलेट नहीं कर सकते द काइंड ऑफ पावर राइवलरी दैट वाज गोइंग ऑन बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच पीपल। ब्रिटेन और फ्रांस कुछ लड़ाइयाँ यूरोप में लड़ रहे थे अपनी सुपीरियॉरिटी के लिए। वही लड़ाइयों का फॉल आउट देखने को मिलता है इस दौर में भारत की ज़मीन पे भी। यही लड़ाई जावा सुमात्रा से लेके, इंडोनेशिया से लेके, मालदीव से लेके अफ्रीका तक खींची चली जाती है। फ्रांस और ब्रिटेन अलग अलग राजाओं का सपोर्ट करके मार धाड़, लूटा लाटी, टेरिटरी का एक्सपेंशन, कंट्रोल, इन सब में लगे हुए हैं। ऐसे में कानून पार्लियामेंट बनाए ब्रिटेन की बड़ा ही डिले हो जाएगा। इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लॉ मेकिंग पावर दे दी गई, और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाले में आपको याद रखेगा, सिविल सर्विसेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड, however no Indian participation. Consolidated power, consolidated executive, legislative and military powers. ठीक है? And first establishment of first law commission. Establishment of first law commission, Lord Macaulay. Clear है? So that is something that you're going to remember and you're going to write, because see, we are only seeing these acts from one reference point. The one reference point is that ये पावर पहले अलग अलग लोगों के पास थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो कमज़ोर ही कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। क्वीन ने कह दिया कि अभी टेरिटरी सदा में हमारी है, और मेरे जाने के बाद मेरे बालक के जाने के बाद उसके बालक के पास ट्रांसफ़र होती जाएगी। एक तरीके से हेरिडिटरी पोजीशन स्टैब्लिश कर दिया इन लोगों ने। अब ये दर्शा रहे थे कि यह सदा के लिए दे वर गोइंग टू रूल इन द hinterland of India in perpetuity. And for the very first time, I think they also realized that we need to consolidate the the legal powers also, the law of this particular India country also, because there was a lot of discrepancy. सो लॉर्ड मैकॉले को लॉ कमीशन भी किया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ लूट रहे थे, ये गवर्न करना चाहते थे इस रीजन को भी, राइट? दिस वॉज द लास्ट चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ 1853. नाउ दिस इज अ वेरी एक्सटेंसिव एक्ट. इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल इन इंडिया एंड अलाउड इट टू रिटेन इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. अब कंपनी का रूल जो है वो पहले जो अबैंडन किया उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया। बोला कंपनी डोंट लीव, कंटिन्यू योर ऑपरेशंस इन इंडिया, एंड यू कैन ऑल्सो रिटेन द इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। यानी 1833 और 1853 के बीच में कंपनी और रानी के बीच में काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन हुआ होगा, जिसके बाद कंपनी को एक्सटेंड किया गया। बट इट डिड नॉट मेंशन द टाइम पीरियड फॉर विच द कंपनी चार्टर वॉज बींग रिन्यूड, राइट? अच्छा, इन लोग की आदत क्या थी कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे उसको 10-10 साल में रिव्यू भी कराते थे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सीन साइमन कमीशन कमिंग टू इंडिया, राइट? द साइमन कमीशन केम टू इंडिया टू रिव्यू कि हाउ द प्रीवियस एक्ट दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट फ्रेम्ड फॉर इंडिया इज़ वर्किंग आउट। तो नारे लगाए थे साइमन गो बैक साइमन, समथिंग लाइक दैट। सो चार्टर एक्ट 1853 was the last act that extended companies rule without mentioning the time period. It separated the legislative and executive functions of the Governor General's Council. Very, very important. For the first time, separation of power was being adopted. जो पावर
1784 से कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया एक व्यक्ति पे, और 1833 में उसको कंसोलिडेट कर दिया। 1853 में उन दोनों ताकतों को अलग कर दिया और बोला कि अब इसमें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स होंगे जिसमें 6 नए सदस्य होंगे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स थे दोस्त? 4। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने आ गए? 6। और टोटल कितने हो गए अब इनके पास? 10। यानी 10 लोगों की बॉडी है, किसके पास जा रही है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपनी क्रिकेट टीम बना लिए, 4 एग्जीक्यूटिव और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज ऑल्सो गिवन। 6 सदस्यों में से 4 जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से क्या किए जाएंगे? अपॉइंट किए जाएंगे। गवर्नर ऑफ मद्रास के अंदर जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, गवर्नर ऑफ बॉम्बे के अंदर, गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर और गवर्नर ऑफ आगरा के अंदर जो भी बेस्ट इंडियन ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, या इंडियन ऑफिसर्स मैं बोल रहा हूँ, या इंडियन पर्सन जो हैं, उन लोग को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। उनमें से 4 बेस्ट जो होंगे वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंडर काम करेंगे। वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल से निकल के आएंगे और गवर्नर जनरल के अंडर काम करेंगे। इट इंड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। फाइनली कहते हैं कि 1853 में सिविल सर्विसेज वॉज थ्रोन ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। मैकॉले कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन 1854। राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो लॉ कमीशन बनाया था, दैट केम अंडर दिस एज लॉर्ड मैकॉले एज ए चेयरमैन, एंड लॉर्ड मैकॉले की जो कमिटी है दैट वाज अपॉइंटेड इन 1854 अंडर 1853। तो यहाँ पे अब ये वाली पॉइंट जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए बाकी 2 पॉइंट्स हैं। तो 1853 के एक्ट को कैसे लिखेंगे? सीधे लिखिएगा लास्ट चार्टर एक्ट 1853। ठीक है। इसने क्या किया? पहली चीज़, इंडियंस इन सिविल सर्विसेज, ऐसे टिक करिए, इंडियंस इन सिविल सर्विसेज। सेकंड, लेजिस्लेटिव सेपरेटेड फ्रॉम legislative separated from judiciary. The legislative council was sorry, executive, judiciary लिख रहा हूँ मैं, executive, legislative council and executive council, इसमें से 4 out of 6 members will be Indians। तो जब आपने ये लिखा, ये शॉर्ट में लिखा, तो आपके खुद को बता दिया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे और कितने होंगे? इसमें 4 इंडियंस होंगे, विल बी इंडियंस, एंड 4 मेंबर्स कंटिन्यूड। बोथ आर अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बोथ आर अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। और एक्सटेंडेड कंपनीज रूल, विथ नो क्लोजर टाइम या ईयर। फिर 1853 के बाद 5 साल के बाद, अब इसमें क्या हुआ? 1853 के एक्ट के बाद क्या हुआ? अब जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस बढ़ने लग गए थे, तो क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी होने लग गई थी, अब 1853 और 1858 के बीच में जन आंदोलन की तैयारी चल रही थी भारत में, और सेपॉय म्यूटिनी एंड ऑल ऑफ दैट यू हैव सीन। उसके बाद आंदोलन हो जाता है, 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति के पीछे भी बड़ी फनी स्टोरी है। बहादुर शाह जफ़र जो हैं, वो बहादुर शाह जफ़र को अगर आप देखेंगे तो बहादुर शाह जफ़र को वहाँ पेंशन की तरह रख दिया गया है। ही इज़ अ पेंशनर नाउ एंड ही इज़ लिविंग इन रेड फोर्ट। अचानक से क्या होता है, ये कार्ट्रिज, एनफील्ड राइफल की कार्ट्रिजेस आती हैं, उसमें अफवाह फैला देते हैं कि वो कार्ट्रिज में जो फैट यूज़ हो रहा है, जिस ग्रीजिंग जिससे होती है, जो भी होता है,
दैट इज़ मेड अप ऑफ पिग फैट एंड ऑल ऑफ दिस। अब उसमें मुसलमान भी नाराज़ हैं, हिंदू भी नाराज़ हैं, कह रहे हैं गाय का मीट है, वो कह रहे हैं कि सुअर का मीट है, लड़ाई झगड़ा। तो सिपॉइज़ क्या करते हैं, बहादुर शाह जफ़र के पास पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह जफ़र मस्त अपना आराम कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। बहादुर शाह जफ़र को कहते हैं तुम ही हमारे राजा हो, अब तुम ही को लड़ना है हमारी लड़ाई। बहादुर शाह जफ़र वॉज लाइक, डियर, आई एम लिविंग इन ऑल द लग्जरीज एंड द लेजर्स दैट आई हैव इन माई लाइफ एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ सैलरी फॉर दिस। Come on, Britishers are paying me to not to rip their ass, and you are asking me to do that? Indians were like, if you were not going to do the majesty, who else is going to do that? Bahadur Shah Jafar came under moral pressure. और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ही एम्परर हैं तुम्हारे, चलो मान लेते हैं। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया ने उनको कहा, दिल्ली में रखा था, ये नहीं कि चुपचाप से दिल्ली में रहते, उठा के फेंक दिया कहाँ, बर्मा। 1857 की क्रांति को बहुत ब्रूटली ब्रिटिश ऑफिसर्स ने दबाया और इनको बर्मा फेंक दिया। अच्छा खासा रेड फोर्ट में रह रहे थे, भारतीयों की मदद करने के लिए इनको पनिशमेंट ऐसी दे दी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा इनका, क्योंकि बहादुर शाह जफर के पास क्यों गए सिपॉइज, क्योंकि वो सिंबल ऑफ यूनिटी थे। वो एक एक कहते ना, मुगल के राजा जो थे एक सिंबल ऑफ यूनिटी थे। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि मुगल का शासन जो था, मुगलों का जो रूल था, वो कम्प्लीटली एक्सप्लॉयटेटिव नहीं रहा होगा। भाई पब्लिक अगर इतना अपने बहादुर शाह जफर पे इतना ट्रस्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका जो रीन रहा होगा वो एक्सप्लॉयटेटिव 100% नहीं रहा होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स रियलाइज्ड कि इनके पास जब तक पॉलिटिकल सिंबल्स हैं यूनिटी के, कोहेशन के, प्रीवियस हिस्ट्री के, तब तक वो कम्प्लीटली रूल नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन को। और इसी के डाइन आपने 1854 के अराउंड देखा है, मुंबई से थाने पहली लोकोमोटिव चलाई गई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा था, स्टीम इंजन बन चुका था और अब रेलवे लाइन बिछाना चालू कर रहे थे ये लोग। रेलवे लाइन कहाँ बिछा रहे थे ब्रिटिशर्स? अपनी माइनिंग वाले एरिया से पोर्ट को कनेक्ट कर रहे थे, जहाँ से शिप में माल लोड किया जा सके, माइनिंग एरिया से सामान निकालें और पोर्ट तक पहुँचा दें। इसीलिए मुंबई टू थाने वाला रेलवे लाइन सेट किया गया था। मुंबई रेलवे लाइन इसलिए नहीं सेट कर रहे थे कि मस्त तुम घूम पाओ, तुम मूव कर पाओ। उनका मेन पॉइंट ये था कि मद्रास, कैलकटा, बॉम्बे, आगरा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, दैट इज़ रीजन ऑफ पंजाब एंड अफगानिस्तान, इसको कैसे लिंक कर दें फॉर इफेक्टिव यू कैन से कम्युनिकेशन एंड वॉट एवर इट इज़। और टेलीग्राफ की लाइन भी इस्टेब्लिश की जा रही थी। ये सब 1854 के 1833 से 1854 के पीरियड के बीच में होता है। फिर जन आंदोलन हो जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जैसा कि वीर सावरकर ने इसको कहा था कि 1857 की क्रांति वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। एंड आफ्टर दैट पूरा डायनेमिक्स सब कुछ अब चेंज हो जाएगा। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को समझ में आ गया क्वीन को दैट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ टू अपहोल्ड अ म्यूटिनी। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटाने की, डिसबैंड करने की बात है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अगर इतनी सारी दिक्कतें का आइडिया लग रहा था कि ऐसे कुछ रिवॉल्यूशन प्लान कर रहे हैं, है ना, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं बताया? वाई डेंट ही टेल, इन्फॉर्म द क्वीन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लगा होगा कि अब बता देंगे तो हमको हटा दिया जाएगा यहाँ से, इस डर से उसने इन्फॉर्मेशन छुपाई। तो क्वीन को समझ में आने लगा कि गवर्नर जनरल के ऊपर भी हमको किसी को बिठाना पड़ेगा जो गवर्नर जनरल की अकाउंटेबिलिटी हमको दे सके। अच्छा, इसी में एक चपाती आंदोलन भी बड़ा फेमस है, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे चपाती आंदोलन। बात यह है कि ये जो मूवमेंट चालू हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अलग अलग रीजन्स में इसकी खबर कैसे फैल गई, ये कैसे लोगों को पता चला कि उनको भी पार्टिसिपेट करना है, उनको भी अपने अपने रीजन्स में मोर्चा छेड़ना है। तो कहते थे कि गांव में एक व्यक्ति है जो रोटी लेके दौड़ता है, चपाती रोटी लेके दौड़ा और दूसरे गांव के गेटमैन को उसने दे दिया। जिस जिस गांव में चपाती पहुंचती चली गई, रोटी पहुंचती चली गई, वो गांव पार्टिसिपेट, उस गांव को खबर मिलती गई कि अब आंदोलन कर देना है, अब अंग्रेज़ों को परेशान करना है। और ऐसे करके आंदोलन फैलाया है। चपाती रिवॉल्यूशन के बारे में ज़रूर पढ़िएगा आज अपने गूगल करके कि ये रोटी आंदोलन क्या था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम की ही बात है ये, कि रोटी एज अ सिंबल को यूज़ किया गया था पॉलिटिकल यूनिटी लाने के लिए, यूनिटी फॉर वन ऑब्जेक्टिव, टू आउस्ट द ब्रिटिशर्स और टू नॉट फॉलो, नॉट अबाइड बाय द एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सिंग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। कोई भी हिस्ट्री का आप आंदोलन उठा लीजिए, अब बॉस्टन टी पार्टी उठा लीजिए,
आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन उठा लीजिए, आप मदर ब्रिटानिया उठा लीजिए, ला फ्रांका उठा लीजिए, आप इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट भी उठा लीजिए, सबका रूट कॉज, सबका जेनेसिस है एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन। एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन का विरोध हुआ है, सरकार ने भद्दे टैक्स लगाए, एक्सप्लॉयट किया लोगों को, और लोगों ने आंदोलन किया, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक मूवमेंट का रूप ले लेता है। प्रोटेस्ट एक मूवमेंट का रोल ले लेता है, और जब उसमें नेशनल सेंटिमेंट आ जाए, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आ जाए, फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म या फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आ जाए, तो वो फिर एक नेशनल मूवमेंट बन जाता है, जिसको कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन, जन आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बन जाता है। तो यही कुछ नैरेटिव सेट हो गया था 1858 में, और अब इस सब के बैकड्रॉप में 1858 का कानून बनाया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया गया, और पूरी की पूरी पावर जो है, टेरिटरीज जो हैं, रेवेन्यूज़ जो हैं, वो ब्रिटिश क्राउन को कंप्लीटली दे दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब रिमूव कर दिया गया, और अब वाइस रॉय यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट, ठीक है, द लॉयल पर्सन टू द ब्रिटिश क्राउन, वाइस रॉय को बना दिया गया, और पावर्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन वर एक्सरसाइज्ड नाउ बाय अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो एक तरफ सचिव है और एक तरफ वाइस रॉय। वाइस रॉय पूरा इंडिया को मैनेज करेगा, और सचिव इस वाइस रॉय से रिपोर्टिंग लेगा, और ये सचिव किसको बताएगा जाके, ये सचिव बताएगा जाके किसको, ये सचिव बताएगा अपनी रानी को कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और 15 मेंबर, 10 मेंबर की काउंसिल को 15 मेंबर की काउंसिल कर दिया, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को 15 लोगों की बॉडी दे दी। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट वॉज एबल टू स्यू एंड टू बी स्यूड इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड। अच्छा, ये पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मैं दिखाऊंगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 300 है, जो कि कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप कब स्यू कर सकते हैं। You can take a case against government of India for civil matters, obviously, and the government of India can also sue you in the court for civil matters. And that इसकी root cause जो है, the power of a civilian to take matters, legal matters against the government was established in 1858 का act. That is something that you should also remember. And who became the first viceroy? Lord Canning became the first viceroy. So setting the tone of GK now, please understand, it starts with Warren Hastings, Lord William Bentinck, and Lord Canning. Right? So, Warren Hastings was the first Governor General of Bengal. Uh, Robert Clive was the first Governor of Bengal. Then came Governor General of Bengal, who was Warren Hastings. Then came Governor General of India, who was Lord William Bentinck. And then who came? First Viceroy, and his name was Lord Canning. Now, if static GK questions पूछे जाएंगे, तो इस रीजन से डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। आर यू क्लियर विद दिस नाउ? Yes, sir. So we are going to pen down the notes for the 1858 की एक्ट। और इसी में फ्लो चार्ट बनाएंगे, और लिखेंगे एबॉलिशिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर एवर, पावर एक्विजिशन बाय क्राउन represented by Secretary of the State, Secretary of the State suggested by 15-member council to assist Governor General of India became
Governor General of India became the Viceroy and Lord Canning is the first Viceroy. Lord Canning is the first Viceroy. So you can write also for your PTR points to remember की तरह आप ऐसे भी लिख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव, याद रहेगा आपको रॉबर्ट क्लाइव, देन वॉरेन हेस्टिंग्स, then Lord William Bentinck, and then Lord Canning. Right? So this is the flow that you are going to remember. बस आपको ऐसे बॉक्स बना लेना है, आपको अपने आप कभी रिवीजन करिएगा अपने नोट्स में तो बाद में लिख दीजिएगा अच्छा रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर ऑफ बंगाल था, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल था, जीओबी था, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ये जी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया था। ऐसे करके शॉर्ट नोट्स अपने को रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन पॉइंट क्या है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द वाइस रॉय इन 1858, राइट। लेकिन दिस पर्टिकुलर एक्ट वॉज क्रिएटेड इन द हरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ऐसा नहीं था कि बहुत सूझबूझ और समझदारी के साथ बनाया गया हो, नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जल्दी जल्दी में हरीडली बनाया गया, क्योंकि उनको पावर ट्रांसफ़र करनी थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ख़त्म करना था, और जो प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया में उसकी जो इंटेंसिटी थी उसको कम करना था। तो इसी के लिए हरीडली बनाया गया, और बहुत कम समय में आप देख सकते हैं 1858 में कानून आया, और आपको दिखाई देगा 4 साल के अंदर अंदर एक नया कानून बना दिया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। क्योंकि आप हम लोग जब पढ़ते हैं ना, जब हम लोग छोटे क्लास में पढ़े या हिस्ट्री को जब भी आप पढ़ते हैं, तो कोई टीचर आपको टाइम गैप पे नहीं बताता है। कभी आज तक किसी टीचर ने टाइम पे फोकस नहीं किया कि 1793 के बाद 1813 में क्यों कानून बनाया, 1813 के बाद 20 साल के बाद क्यों कानून बनाया। वो टाइम गैप जो होता है वो अपने को बताता है कि अच्छा 58 का एक्ट जल्दी जल्दी में बना दिया था, उसके जो डिफेक्ट्स हैं, उसकी जो खामियां हैं, या जो उसको एक्सपेंशन है, तुरंत उनको करना पड़ गया विद इन 4 ईयर्स, राइट। अब क्योंकि अंग्रेज़ों को ये भी समझ में आ चुका था कि अगर हमने इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रखा तो ये विरोध बढ़ता रहेगा। बहुत चालू थे अंग्रेज, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए नहीं रखना था कि विरोध ख़त्म करना था, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए रखना था कि कुछ इंडियंस हैं जो वफादारी देंगे नौकरी के नाम पे, और सूचित कर देंगे, पहले से वार्न कर देंगे ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर किसी आंदोलन की तैयारी बैकड्रॉप में चल रही है तो ये उनका टारगेट था। और अब उन्होंने काउंसिल्स एक्ट का जो दौर है वो हमारे सामने रखा, और काउंसिल एक्ट 1861 की आई, फिर काउंसिल एक्ट 1861 के बाद 90s में आई, 1892 में आई, और लास्ट काउंसिल एक्ट आई 1909। तो इसके बाद आप यही पॉइंट लिखेगा, नाउ राइट, नाउ आफ्टर दिस under the supervision of Secretary of State plus Viceroy, 3 council acts were passed. 3 council acts were passed. First was passed in 1861, second was passed in 1892, and the last was passed in 1909. Right? Yeah, write this particular thing down. ये रिवीजन नोट्स हैं, आपको क्विकली रिवाइज करने में मदद करेंगे। 1861, yes संस्कृति। So that was 1909 or 1919? 1919 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई है, ठीक है। अच्छा, okay. इट इज 1909, राइट। Okay, sir. ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर एंड यहाँ पे लिखेंगे स्टार बना के, यहाँ पे लिखेंगे दीज काउंसिल एक्ट्स
shifted A powers, B members, C Indians in exec and legislative council. ठीक है, जो आपने सबसे पहले देखा था कि जो आपके एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया था लेजिस्लेटिव से, वो एक तरीके से अलग नहीं किया गया, एक्सपेंशनिस्ट बॉडी बनाई गई थी। मतलब पहले एक ही व्यक्ति कानून बनाएगा, अब 6 लोगों से सलाह मशवरा करके बनाएगा। पहले एक ही व्यक्ति आदेश देगा, अब 4 लोग से सलाह मशवरा करके देगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आज आप किस रूप से जानते हैं? आज की एग्जीक्यूटिव, जो उस टाइम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, आज वो किस रूप से देखी जाती है? आप ज़रा बताइए। उस टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, आज इसको आप क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम टुडे यू गिव? ऑप्शन दे। कैबिनेट। हाँ, क्या? किसी ने आंसर दिया अभी, क्या दिया? कह रहा है कैबिनेट। वेरी नाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं आप इसको। उस टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, आज इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि सर यहाँ पे 4 हैं और यहाँ 24 हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा, सर ये अपॉइंटेड हैं और ये कैसे हैं दोस्त? इलेक्टेड हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर कौन है और इनके ऊपर कौन है? जनता, जो कहाँ रिप्रेजेंट होती है? पार्लियामेंट में। इसी की तो पूरी लड़ाई है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे अपॉइंटेड है, यहाँ इलेक्टेड है, इनके ऊपर रानी है। हमारे यहाँ रानी नहीं है, हमारे लोगों ने जनता को पावर दे दी है, वी द पीपल। द काउंसिल ऑफ द एग्जीक्यूटिव शैल ऑलवेज बी अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। आपने हज़ारों दफ़ा सुना होगा, कभी सोचा नहीं होगा इस बारे में। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल शैल ऑलवेज बी अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आंसरेबल बिफोर द पार्लियामेंट। ऑपोजिशन इज एबल टू आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड मेक देम अकाउंटेबल कि तुमने क्या किया ये देश में। शायद ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल के अंडर आप नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। तो ये पूरा जो पावर ट्रांसलेशन है, दैट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट उसका जो भूमिका, उसका जो बैकड्रॉप है, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा कैसे कैसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। उसके बाद आप देखिए, just take a quick glance, we'll wrap the class today after this. Just take a quick glance, we're not going to write any further. This act provided the Viceroy Council should have some Indians as non-official members. Lord Canning nominated 3 Indians: the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. Now, please tell me the problem with the appointment. The appointment of Indians had 2 problems. First, these people were appointed in the non-official capacity, which means they are powerless. Second, elite class is there, no commoners. Which means at that particular point of time, 1860 के दौरान शायद किंग को, जो छोटा राजा था, उसको माना जाता था कि वो अपने सिटीजन्स का, अपने नागरिकों का ट्रू इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता होगा। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया, बट फेवरेटिज्म राजा लोगों को करने लग गए। अब राजा लोग अगर ब्रिटिश प्रशासन के साथ साझेदारी कर रहे हैं, तो अपनी जनता को आंदोलन करने देंगे? कभी नहीं। यानी अंग्रेज़ों ने उन राजाओं को अपने फेवर में किया और उन लोग को कहा कि अगर जनता तुम्हारे अंडर आंदोलन कर रही है तो उसको वहीं तोड़ दो, वहीं ख़त्म कर दो। कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट किया था। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। डिसेंट्रलाइजेशन, एवरीथिंग वाज बिफोर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी आपने देखा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मद्रास, बॉम्बे, आगरा सबके लिए कानून बना रहा है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे अपने जो गवर्नर एरिया थे, उनको भी पावर कुछ कुछ देने लग गए। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सारी पावर बना रहा है, तो वो आपको दिखाई देता है कि सेंटर है।
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से थोड़ी लॉ मेकिंग पावर लेके जब आपको अलग अलग गवर्नर्स वाले एरिया में दी गई तो आपको दिखाई दिया नए नए स्टेट्स हैं, यानी पहली बार स्टेट की लॉ मेकिंग पावर अपने को दिखाई देती है। अंडर विच एक्ट डियर? द स्टेट एक्वायर्ड द लॉ मेकिंग पावर अंडर 1861। हमारे यहाँ पे आज ऐसा फॉलो होता है कि नहीं होता है करंट टाइम्स में? डू वी फॉलो दिस और नॉट? Yes, the parliament makes the law for the entire India and the states make the law for their own territories, and this was also happening at that point of time. The Governor General of India had acquired all the power once, but later on in 1861 the power was also given some extent to the governors of Bombay and governors of Madras. There is also a new legislative council which was established in all these regions, which was established in this year, which means now by 1860s Britishers had expanded to Afghanistan and to Punjab as well. The viceroys were empowered to issue ordinances, temporary laws in case of emergency, and right now this particular power is now with the President of India. And when legislature was not in session, the ordinance making power came for the first time in 1861. Portfolio system, that a mantri will be handling only one department, was recognized under this act. जीके का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, द पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो का मतलब होता है मंत्रालय कौन सा मिलेगा तुमको। अंडर दिस वाइस रॉय की काउंसिल से under this a member of the viceroy's council was made in charge of one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of council on matters of this department. Today railway minister looks after only railways, transport minister looks after only transport, and that concept was introduced in 1861. So you will find that the Council Act of 1861 was for better governance, better efficient governance. It did not change the structure of the government largely, but ensured that the other governors, including Indian, also have some say in the governance of the region. And you will find that the territories under British India possessions were also increasing over a period of time. Then came 1892 का एक्ट, जिसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो अभी 3 थे वो बढ़ा दिए गए, सेंट्रल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी। अभी सेंट्रल लेवल मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर, वाइस रॉय ऑफ इंडिया के अंडर, और प्रोविंशियल लेवल का मतलब जो गवर्नर्स हैं उनके अंडर। बाय लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन, चुनाव पहली बार इंट्रोड्यूस किया 1892 में, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन था और लिमिटेड था। लिमिटेड था मतलब not everybody in India was voting. Kisan, गरीब, they were not voting. People, those who had good amount of land. भारत में वोटिंग अधिकार अंग्रेजों ने किनको दिया था? क्योंकि वोटर आईडी तो यही लोग इशू करते थे, तो इन्होंने वोटर आईडी उनको दिया था जो ज़मींदार थे। अब ज़मींदार क्यों ही ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बात करता हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर किसानों को ये वोटर आईडी दे देते तो उस समय बात कुछ और होती। तो लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया। इलेक्शन इस एक्ट में यूज़ नहीं किया गया था, दो द लेजिस्लेटिव काउंसिल गॉट वन मोर फंक्शन, दैट नाउ फॉर्मली बजट को डिस्कस किया जाएगा। तो 1892 का एक्ट आपको जितना छोटा दिखाई दे रहा है जीके के, उतने ज़्यादा, कम से कम 3 MCQs निकल गए यहाँ से। पहली बार बजट 1892 में डिस्कस किया गया, पहली बार लिमिटेड और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो भी 1892 में किया गया, और एक्सपेंशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज आल्सो एक्सपैंडेड इन 1892। नाउ 1892 एंड 1861 को हम नेक्स्ट क्लास में समराइज करके इसके नोट्स बना के, फिर फाइनली 1909, दैट इज़ द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स एंड मॉन्टेगू कैम्पस्फॉर्ड रिफॉर्म्स। बोथ ऑफ दीज रिफॉर्म्स आर वेरी फेमस and very you can say important, much even more important than what we have studied so far. तो 1909 का जो लास्ट काउंसिल एक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो एक्ट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। सिर्फ इतनी डिटेल एक्चुअली इसमें इनफ नहीं होगी, थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो उस तरफ डायरेक्टेड होगा, राइट। तो है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की ही क्लास, but again I don't know how to draw a very distinct boundary between these subjects because they are so much intermingled.
So we are halting the class now. Please revise. Make sure that by the next legal class, whatever it is, you know word by word, line by line 1892 तक का सब कुछ, right? Yes, सार्थक. सर मेरे को ये प्लीज पीडीएफ चाहिए थी। अब ओके, ठीक है, ओके, I'll be sharing this particular PDF only. अभी इसको कर देता हूँ मैं. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. भैया Yes. एक रिक्वेस्ट थी, ये आप इसको डार्क मोड में चलाया कीजिए, मतलब पीडीएफ, मतलब जो आपका डिवाइस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइटिश अजीब सा ही लगता है। मतलब आप डार्क मोड ऑन कर लेंगे ना तो Is उसकी that वजह से थोड़ा सा कम स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे। सैमसंग नोट्स में होगा सर आई गेस। क्या? नोट्स में होगा सर ऑप्शन आई गेस। नहीं नहीं, नहीं डार्क PDF इज इन दिस मोड ओनली, नो वाइट में, ओह तो अच्छा, पेज भी वो वाइट ही ऐड करेगा. मे बी एक बार डार्क मोड ऑन करके चेक कर लीजिएगा भैया। नहीं नहीं, डार्क मोड पे पेज नहीं करेगा. आई ओह हैव टू चूज, इफ आई एम मेकिंग अ पेज देन आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ द पेज. तो कोई दिक्कत नहीं भैया, तो कोई बात नहीं। तो if I am making notes then I can do that, like I can use this particular format and यस teach you in this format. but अगर मेरे नोट्स ही नहीं हैं, वो तो नोट्स मैं प्रिंटेबल बनाता हूँ ना, प्रिंट कर लो जिसको. मैं चाहूँ तो ब्लैक पेपर पे भी नोट्स बना सकता हूँ PDF, बट वो फिर आप प्रिंट नहीं करा पाओगे. इंक बहुत जट रहेगी हमारी। हाँ, ख़त्म हो जाएगा, 4 शीट में ही ख़त्म हो जाएगा प्रिंटर का इंक, तो इसीलिए मिक्स है ये. कोई बात नहीं भैया, सही द है। पॉइंट, आप तुम लैपटॉप से पढ़ते हो आशीष? हाँ नहीं भैया, पीसी है मेरा। PC है तो उस पे शील्ड लगा लो, वो UV वाली शील्ड आती है, वो रेज वाली शील्ड आती ओह है, स्क्रीन आती है. नहीं भैया, वो मेरा चश्मा, मैं जा रहा हूँ इसका मतलब अच्छा लेंस लगवाऊंगा, मतलब -1 है ऑलरेडी, अब मायोपिया बढ़ता जा रहा है मेरा, इसीलिए। ब्लू स्क्रीन वाला लगवा लियो अपने आईज में। हाँ एग्जैक्टली, वो करा हाँ लो. वो ज़्यादा है। थोड़ा वो है भैया, वो है, मतलब अभी और अच्छा वाला लगवा लूंगा, मेरा बढ़ गया नंबर एक्चुअली, और मतलब। और लैपटॉप में एक होता है रीडिंग मोड, मतलब कलर हाँ जो, बॉम्ब लाइट कर देगा वो। हाँ कलर जो होता है वो येलोइश हो जाएगा, वाइट नहीं रहेगी लाइट. हाँ एक नाइट मोड वाला इसमें भी है, हाँ वो कर लो. येलोइश हो जाता है। हाँ I'll make sure next time से that I use the dark mode for writing. अब PDF जैसे भी है उसको हम डार्क मोड पे ऐड करेंगे पेजेस को, ठीक है. थैंक यू सो मच या भैया. भैया, I'll see you in थैंक the यू भैया, next class. Okay dear. थैंक यू सर। Okay गुड dear. नाइट भैया। थैंक थैंक यू सर सर। वो Thank you, सर 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 मुझे एक बात बोलनी है। Yes. सर वो जो प्रोफेसर आए थे, दैट हर्षवर्धन सर, हाँ दैट पॉसिबल सर, उस इंसिडेंट के लिए थैंक यू सर। आज वो इंसिडेंट बहुत अच्छा लगता है जब याद करते हैं तो, कितना अच्छा एक्सपोजर मिला हमें। थैंक यू सर। वेलकम. हर्षवर्धन तिवारी जी, यस सर। द वे ही टोल्ड एवरीथिंग, मतलब हम लोग हंसते ही जा रहे थे पर वो बहुत जो बहुत बता दिया। बहुत चालू आदमी है. हाँ पापा। प्रमोशन करके चला गया वो अपने कॉलेज का. यस सर, उन्होंने सब बता दिया मजाक मजाक में। अच्छा नहीं, उनका हम उनका भाई अभी जज हो गया है यूपी में. ओ, एंड सर जो सेकंड सर थे, आई थिंक दीपांशु सर थे हाँ क्या, हाँ हाँ उनकी एज आपने बताई कि 25 या 26 कुछ हो गया ऐसे, हाँ. और हमने गेस करी थी 40 के तो होंगे ही सर। वो आजकल सभी यंग दिखते हैं 40s में भी। नहीं, सब 30s में है, सब हमसे 1-2 साल बड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, सब 30s में है. हम कोई 20 साल के थोड़ी हैं भाई. आई एम ऑल्सो टचिंग 30 इन नेक्स्ट, आई थिंक 1 साल में, 2 साल में. यस संस्कृति, फुल ऑफ डाउट्स ऑल द टाइम. नहीं सर, बस ये PDF सर भेज दीजिएगा जीमेल पे. यस सर। भैया मैंने कल वाली क्लास के नोट्स बनाए, मैं आपको भेज दूंगा, आप इनको भेज दीजिएगा। हाँ सर भेज भाई देना फिर प्लीज इसका प्लीज। फॉलो करके नहीं, हमको। अरे नहीं नहीं, आई विल शेयर द PDF जिसमें नोट्स बने हुए हैं. ये पूरी सर PDF वो है, क्वालिटी की पहली क्लास नहीं की थी ना सर, तो तो वो उसके लिए। ऐसे ही आ जाएगी आपको. विल कम इट लाइक दिस, मतलब ये नोट्स के साथ आएगा PDF आपको, ओके सर। ठीक है. ओके यस सर। ओके डियर, चलो थैंक यू. यस शौर्य. थैंक यू सर। ओके डियर. जयशंकर ने फ्रांस को लक्ष्मण कहा है। क्या? क्या? एस जयशंकर ने फ्रांस को लक्ष्मण कहा है, लक्ष्मण। फ्रांस को लक्ष्मण बताया है, खुद को राम बता दिया है.
हाँ ऐसा ही कुछ है। वो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे ये सब उसकी उसकी ईरान की और हमास की बारह बजाने के लिए। फ्रांस इज़ ऑल्सो वेरी कट्टर, एकदम एंटाई मुस्लिम और वैसा है थोड़ा सा। उसका रुख उस रीजन में वैसा हो रहा है फ्रांस का, तो हाँ सर, लेकिन इंडिया की दोस्ती तो सबसे है ना। ईरान से अपने मतलब के लिए हम लोग रखे हैं तेल के अरे लिए। दोस्ती नहीं है ईरान से, आप समझ अरे लीजिए। वही मतलब इंटरेस्ट है। हाँ, गुड, दैट्स अ गुड वर्ड। We are, everybody is not a friend. Sometimes we call this marriage of convenience, and that is what we have with Iran. हाँ सर, मैं आपसे एक डाउट पूछने आया हूँ, बताइएगा मत मेरे दोस्तों को। ठीक है। अच्छा, डाउट नहीं था, सरकाजम देना था बस। ओके, गॉट इट। यस। चलो ठीक है। शौर्य, एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, चलो देन आई विल सी यू गाइस टुमारो। कल हमारी क्लास कितने बजे से है? 5 बजे से? 4 o'clock. 4 PM से आई गेस। हाँ, 4 बजे से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी यू टुमारो देन। बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय।